ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ दारू ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰੋ, ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੰਖਿਪਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਪੰਛੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਮਲੀਨ ਤੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੱਬਰ, ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿਓਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਬੜੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਸ਼ੀਤਲਤਾਈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਣਗੇ। ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਖਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿਓਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਅੱਗੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ, ਮੇਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ, ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਜਿਤ ਦਿਠੈ ਤਨ ਪਰ ਫੜੈ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵਨ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਯੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਆਏਗਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰੇਗਾ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਆ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ
ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਬਰ ਵੀ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮਾ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਾਪਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਪੇਟ ਦਾ ਰੱਜਣਾ ਸੁਖੈਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਲਟੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰਾਸੀ ਬਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਡੋਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਟਿਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ 2 4 5 10 ਗੱਠਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸੱਟ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਲ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਜੁਗਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੱਟੀ ਜਾਈਏ ਕਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗੀ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਸੱਟੀਏ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਹੁਣ ਪਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਭੋਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਖ ਦੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਸਖਤ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੌਤ ਕਹਿ ਲੋ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੌਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੇय ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣੇ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ।
खाना चेते, पीना चेते, खसना चेते, मौज मेले चेते ने, पर प्यारिओ एक रब भुल गया ते दूसरी मौत भुल गई। खाना पीना खसना सौना विसर गया कै मरना। अगला महाराज कहते खसम विसार खुआरी कीनी जीवन नहीं रहना। एक खसम एक मौत भुल गई। गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ा तीसरा दुख मन्निया, प्यारिओ याद रखो ये तीसरा दुख गुरुदेव ने मौत नूं मन्निया है, जिहड़ी सब नूं डरा रही है, जिहदे तो असी भय खा रहे हैं। कोई शक नहीं, भावें मैं अपने घर च बैठा बोल रहा वां, मौत का भय तो साडे अंदर भी है। कोई ऐसा नहीं जिस अंदर मौत का भय नहीं। गुरु साहब कहते ने ये तीसरा जिहड़ा दुख है ये मौत है। चौथा दुख जिहड़ा अज वापर रहा उहदा जिक्र किया। महाराज कहते ने दुख विछोड़ा फिर सुनियो। पहला दुख आत्मक तौर ते परमात्मा दे विछोड़े दा। दूसरा दुख मन दियां तिशनावां, मन दी भुख दा। तीसरा दुख मौत दा, जमदूत दा, अजराइल दा। ते चौथा दुख गुरु जी कहते ने एक दुख रोग लग्गै तन धाए। चौथा दुख जिहड़ा शरीर नूं लगियां होईयां बीमारियां ने, जिहदा असी अज मानव जाति जिहदे विच फसी हुई। महाराज जी ने ये चार तरह का दुख का जिक्र किया। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लग्गै तन धाए। अगे महाराज कहंदे आ वैद ना भोले दारू लाए। वो भोले वैदा अज इहो जी बीमारी लग गई, भोला वैद तेरे कोल इहदा इलाज ही कोई नहीं। वैद ना भोले दारू लाए, इहदा कोई दवा, इहदी कोई औषधि, इहदा कोई दारू है ही नहीं। पर अगे सतगुरु ने अध्यात्मक तौर ते दसिया कि ये रोग, ये बीमारी किवें ग्रस गई। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्तवार जमदूत, एक दुख रोग लग्गै तन धाए। वैद ना भोलै दारू लाए। महाराज कहते दर्द होवै दुख रहे शरीर वाहिगुरु। महाराज कहते इहो जी बीमारी कि शरीर कुरला उठदा है दर्द नाल, पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। दर्द होवै दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वीर। ऐ मेरे वीर वैद, ये कोई दवाई इस पीड़ा दे उत्ते कारगर साबित नहीं हो रही। महाराज कहने दर्द होवै दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना वीर। अगे महाराज कारण कहते खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। इस तुक नूं फिर ध्यान नाल सुनियो। खसम विसार किए रस भोग, खसम नूं परमात्मा नूं विसार दिता। जीव दे चस्के, ਕੰਨ ਦੇ ਚਸਕੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦਾ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਰਹਿ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਵੈਦ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚਾਰ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ कि बीमारी है, इहदा इलाज हाँ गुरु साहब जी ने कृपा की है। मैं आपनू अगे भी अर्ज की, दुख ते सुख जिंदगी का हिस्सा है। कदी परमात्मा दे कीते ते आपां तर्क नहीं करना। ये गल जे याद रखियो, चाहे ये मुसीबत ये दुख जिन्ना मर्जी वापरदा पिया है, पर मैं आपनू एक बेनती करांगा, गुरु नूं मनण वालिओ, रब नूं मनण वालिओ, जे ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕਸੋਗੇ, ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਦੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, महाराज कहते संपै देखना हरखी है, विपत देखना रोए। अर्थ सुनियो, कबीर साहब का शब्द है। संपै दा अर्थ है दौलत, खुशी, कि जदों तेरे कोल खुशी है, दौलत है, ते खंकार ना कर। ते जदों तेरे ते मुसीबत आ जाए, विपता आ जाए, दुख आ पै, ते उदों ढाहां मार के रब नूं उलांभे ना दे। याद रख, जिन्हें संपत्ति दिती है, विपता भी उन्हें ही दिती है।
संपै देख ना हरखियै, विपद देख ना रोए, ज्यों संपै त्यों विपत है, बिद ने रचिया सो खोए। जिवें दुख उस तरह सुख है। मैं आप नूं बेनती करां, गुरु साहब जी ने साडे सामने किन्ने वड्डे भावां बोलने शब्द बहुत सौखे आ, जिस बंदे ते वापर जांदी उस बंदे नूं पुछ के देखो। खालसा जी अपने गुरु साहबानां दी तवारीख नूं कदी पढ़ीए। समर्थ गुरु ने धर गुरु अर्जुन देव जी अखीरले समय शरीरक तौर ते किन्ना खेद दिता गया जालम बिरती वालों। 5 दिन तसीहे दिते गए। प्यारिओ 3 तरह के तसीहे दिते, तपत नीर, तपत बालू, असी देखने तपत लो, तपदी हुई रेत, तपदी हुई देग पानी दी, तपदी हुई लो। पर सच ये वे गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह महाराज इन्नी मुसीबत विच भी ये थोड़ा क्या मैं तेरी इन्नी इबादत की, इन्नी भगती की, महाराज कहंदे आ ओलाह नूं मैं काहू ना दियो, मन मीठ तुहारो कियो। परमात्मा जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिस ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो, ग्रह भीतर उठ आहू को दौड़ियो। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो साहिब को सो माथे लै मानियो। अगली गल, अज असी अपने घरां च बैठे हाँ, क्योंकि जदों दवाई कोई नहीं, कुछ भी नहीं, हर मुल्क भावें वो तोपां दा मालक, मजाइलां दा मालक, टैंकां दे मालक, लखां फौजां दे मालक इक्को गल कह रहे, अपने घरां विच बह जाओ, इहदी दवाई कोई नहीं। आपां घर च बैठे हैं, कोई शक नहीं इस भारत वर्ष विच कि ऐसे ने जिहड़े विचारे सारे दिन च कमांदे ने, शाम नूं रोटी खांदे आ। परमात्मा तू तरस कर। मैं अगे बेनती करांगा, असीं अरदास भी करिए, पर जे आपां नूं रब ने रोटी दित्ती है, आपां नूं घर दिता है, ते आपां इस गल नूं समझीए, असीं घरां 'च टेक के बैठीए। आ भी दुखी होवांगे ते साडे दुख नाल कईयां होरनां नूं दुख पहुंचेगा। मैं तां कई वारी सोचना, महाराज असीं कथा कीर्तन गल्लां करने आ बने साडे घर च गड्डियां खलोतियां ने, फोन करने आ, रोटी पानी सौदा समान सब कुछ पिया, पर प्यारिओ वो 8 महीने जेन च रख के तुरियो कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे आनंदपुर साहिब नूं घेरा पिया। उस 8 महीनों विच खाण पीण वास्ते कुछ भी नहीं रहा, पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह उन्हें रब दी रजा नूं शुक्र वजों उहदे अगे सीस झुकाया। मेरे कहण तो मुराद मैं कमजोरी बुझदिली नहीं कह रहा, अध्यात्मक तौर ते जदों इहो जिहा वरतारा वरतदा है ते गुरबाणी हुक्म ते रजा ते बहुत वड्डा जोर दिंदी है। जिवें बाबा फरीद साहब जी दा बचन है, फरीदा दुख सुख एक कर, दिल ते लाए विकार, अल्लाह भावै सो भला तां लभी दरबार। मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा उस विषय ते, क्योंकि मेरी इच्छा है अज मैं थोड़ा जिहा कथा दी आरंभता तो पहला ये गल्लां आप नाल साझीआं करा। हुण जिहड़े 4 दुख दसे ने, विछोड़े दा, सतगुरां ने तृष्णा दा, भुख दा, मौत दा, ते शरीर नूं लगी कोई बीमारी, अध्यात्मक तौर ते इहदा इलाज की है? गुरबाणी मुताबक गुरु जी कहंदे आ, दुख मोहरा मारन हर नाम। ये 4 गल्लां मेरियां बेनती ध्यान नाल सुनियो। दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसन हथ दान, नित नित लिखो न छीजै दे, अंत काल जब मारे ठे। ये अर्थ बड़े सरल जै ने। लफ्ज कह दुख मोहरा, असी जहर कहने आ, विष कहने आ, जां साडे लोग शब्द पॉइजन वरतदे आ। जहर कह लो, पॉइजन कह लो, विष कह लो, जां एक हकीमां दी जां वैद लोकां दे जिहड़ी शब्दावली च उसी एक शब्द संखिया भी वरतने का। आप सब नूं पता है कि संखिया सीधा कोई खाए बंदा मरेगा। कोई जहर जिहड़ा संसार विच है उहनूं बंदा सीधा खाए, सीधा पा के कहण तो मुराद सीधा कि ओहदी कोई भी ट्रीटमेंट ना होवे,
ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੈਦ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਧਾ ਖਾਇਆ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੀਮ ਸੰਖੀਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ, ਮਾਰਨ ਦਰ ਤੇ ਮਸਾਲਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹਕੀਮ ਲੋਕ, ਵੈਦ ਲੋਕ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ। ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣਦਾ, ਦਵਾਈ ਬਣਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੈਂ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਗੜ ਨਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਪੀਸਣ ਹੱਥ ਦਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਤੋਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ, ਗੁਰੂ का लंगर ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਕਉ, ਆਓ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ, ਆਓ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ समय बैरी के मावे परम मीत समताएं शिकावे।
जे वैरी भी आ जाए कोई जिहड़ा सारा दिन लड़दा रहे, पंगत विच बैठे कोई नूं सिख ओनूं भी रोटी खवा दिंदा है। मेरे कहण तो मुराद कि ये वाला वेला है, इस दुख का इलाज गुरु नानक साहब ने अध्यात्मक तौर पर दसिया। दुख आ गया है तो नाम का इनू मसाला पा के इहदी दवाई बना लै, इनू संतोख की सिला उत्ते पी, हथों तो कुछ दे के भला मना। महाराज जी ने कहा दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसना दान, नित नित लिखो न छीजै दे, अंत काल जब मारै ठे। प्यारियो ऐसा दारू खाए गवार, जित खादे तेरे जाहे विकार। एक तो ये बेनती सी जी, बाबा जी ने क्या दुख है नाम विच। इस तो अगली गल जिहड़ी अध्यात्मकता है, असी कुदरत नूं माने हां, पर आप चेते रखियो गुरबाणी कुदरत तू साजन वाले कादर तो गल शुरू कर दी है। जिवें असी पाठ करने कुदरत करके वसिया सोए, जां बलिहारी कुदरत वसिया, जां असी गुरु जी का बचन पढ़ने आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाहो। गुरु साहब कहते उहदी कैनात विच सियाणे तो सियाणे बंदे भी होए आ, पर एक गल जिहड़ी अज सारी मानवता ते है, मैं कहना भावें किसे दा कोई भी धर्म है, किसे ढंग नाल उस परम सत नूं परम शक्ति परमात्मा नूं मान रहा है। अज की ईसाई, की मुसलमान, की हिंदू, की सिख, की यहूदी, हर कोई एक गल करदा पिया कि परमात्मा दे सामने अरदास करो, परमेश्वर सामने अरदास करो। ते सच है वैद जो अज कह रहे मेरे खत च नहीं, बाबा जी ने बाणी च एक शब्द कहा सी, कबीर वैद कह खो ही भला, दारू मेरा वस, ये तो बस्त गोपाल की जब भावै लै खस। वैद समझदा मेरे को सारा ज्ञान, पर गुरु साहब कहते नहीं, ये परमात्मा की दात है। हाँ अगली गल, वैद दवाई देवे पर वो भी कारगर साबित तां होवेगी जे परमात्मा अपनी बख्शिश करेगा। था गुरु अर्जुन साहब के बचन ने, वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। महाराज कहते आ वैद जितने मर्जी इकट्ठे हो जान, दवाई उही रास आउंदी है जिहदे विच परमात्मा वरते। मैं सिर्फ कुछ कुछ बेनतियां अज आरंभ च ये कीतियां। साडे कोल घरां च हुण टाइम है, बहुत चंगा वेला आ गया। मैं चंगा वेला तां कह रहा कि सानू परमात्मा ने वक्त दिता है, आपो अपनी बिरती है। कोई बंदा फिल्मां देख रहा है, कोई खेडां खेड रहा है, गेमां खेड रहा है। वो गुरसिखो जे रब ने वक्त दिता है, घर दे सी जी सारे बैठ के सवेरे शामी दोपहरे गुरु गुरु जपो, बाणी पढ़ो, नितनेम की संथ्या कर लो, 10 गुरु साहबाना का इतिहास पढ़ लो। देखो यूट्यूब ते नैट चल रहे लोगों के घर च शुद्ध गुरबाणी उचारण वख-वख गुरमुखां वल्लों रिकॉर्ड किया गया। आपा कितना चंगा होवे उस उचारण नूं घट्टो घट इन्हां दिनां च अपने नितनेम का पाठ ही शुद्ध कर लईए ते सचमुच ये दुख विच साडे लई ये दारू बन जाएगी गुरु की बाणी। इस तो अगली बेनती मैं 3-4 गल्लां कीतियां ने। दुख गुरबाणी मुताबक इस दी समाधान का हल भी गुरु जी ने दसिया अध्यात्मक तौर पर। इस तो अगला है अरदास करनी कि परमात्मा के सन्मुख बेनती करिए। गुरमत का यह सुनहरी असूल है कि जिथे भी बैठिए, पहली गल तो असी कदी ये नहीं कहना कि चलो साडी कम्यूनिटी का भला होवे। उंज वैसे मनुख की एक बिरती बन गई है कि वो जदों अपने नूं दुख लगता है उदों होर ढंग नाल महसूस करता है, जदों दूजे नूं दुख लगता है उदों उहदे सोचण दा महसूस करन दा तरीका होर हुंदा है। पर गुरबाणी ने ऐसा नहीं किया। मैं कहना असीं भारत च बैठे, जे परमात्मा सानू बचांदा पिया है, इटली विच, अमेरिका विच, स्पेन विच, जर्मन विच, यूरोप विच, जिन थावां ते ये दुख वापरदा पिया, जिंद तां जिंद ही है ना। गुरबाणी कहंदी अरदास कर ते सब दा भला मंग। जिवें गुरु अमरदास दा एक बचन है, जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा तार। उत्थे नहीं क्या पंजाब दे लोकां नूं रख लै,
उथे ये नहीं कहा भी सिर्फ बाणी पढ़न वाले बचा लई। मैं एक बेनती करांगा, याद रखो, जदों अध्यात्मक तौर ते शिखर ते पहुंची हुई रूह अरदास कर दिए, वो अपने तां छड्डो, इत्थों तक उहदे नाल बुरा करन वालियां दा भी वो भला मंग जांदे। जिवें फरीद साहब जी ने कहा, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लगी पल्लै, सब किछ पाए। मैं सिर्फ एक के बेनती करके कि देखो, गुरु अमरदास कहते हैं, जगत जलंदा रख लै, अपनी कृपा धार, जित द्वारा उभरै तितै लिहो उभार। अज दास पाठ कर रहा सी, महाराज का एक बचन आया गुरु अर्जुन देव का, तो मेरा ख्याल अज साडी अरदास, इनू सारे बना लीए शब्द नू अरदास। वो अरदास है, सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। मैं जिन्ने आप सुनते हो, मैं बेनती करांगा, अपने नितनेम दे विच इस अमृत शब्द नू शामिल कर लीए। कोई शब्द देना नहीं, ये साडी नहीं, गुरु अर्जुन देव की अरदास है। सभे जी संभाल, जिन्ने जीव ने परमात्मा इन्हां दी संभाल कर। असीं बेनती कर सकने, क्योंकि जिस ठाकुर स्यों नाई चारा, ताको कीजै सद नमस्कार। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। हुण इस बचन देखो, सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। मालक जी तुसी मेहर करो, अन्न पानी मुच उपाए, दुख दालद भन तार। बड़ी वड्डी अरदास है। परमात्मा जीवां दे खाण वास्ते अन्न ते पानी पैदा कर। जेड़ा दुख वापरिया सृष्टि ते, जिस करके दरिद्रता आ गई है, तू कृपा कर एक दुख दरिद्र तो दूर कर दे। सभे जी संभाल अपनी मेहर कर, अन्न पानी मुच उपाए, दुख दालद भन तार। अरदास सुनी दातार, सब सृष्ट होई ठर। उन्हें बेनती सुनी, ते महाराज गुरु अर्जुन देव कहते जे रोज रोज बेनती करोगे, इस सृष्टि ते ठंड वरत जाएगी। महाराज शब्द वरत रहे, कंठ लिखो, तुसी अपने गले नाल सानू ला लो। कंठ लिखो लगाए, सब अपदा हर। ये जिन्नी मुसीबत जिन्नी पीड़ा आई है, परमात्मा तुसी कृपा करो, इनू दूर कर दिओ। वेखो, ये गुरु अर्जुन साहब सदियां पहला अरदास कर गए। महाराज कहते सब अपदा हर, ये दुख दूर कर दे। ते हुए कि नानक नाम त्याहे, प्रभ का सफल कर। परमात्मा दा घर ये मूँह मंगियां मुरादा देंदा है। बस ये शब्द नू मेरी बेनती है कि सभे जी संभाल अपनी मेहर कर, अन्न पानी मुच उपाए, दुख दालद भन तार। ये सारियां नू खत्म कर दे। एक तां अज दी कथा आरंभ करन तो पहला मैं ये जरूरी समझदा सां कि सारे अरदास करिए प्यारिओ, भजन बंदगी करो, सिमरन करो। मालक दे चरनां च जुड़न तो बिना होर कोई चारा ही नहीं। बस गुरु रामदास दा ये बचन चेते रखियो कि मेरे खर जियो सब को तेरा वस, असां जोर नाही। अज साडियां बाहां खड़ियां हो गईयां, साडी सियाणप, साडी अकल, साडा पैसा सब कोई धरिया धराया रह गया। ते याद रखो, बस परमात्मा ने एक वो चीज़ जिहड़ी दिसदी भी नहीं, अन दिसदी ने दिसदे होए नू इस तरह पिंजरे च ताड़ के रख दिता, जिवें लोकां ने सच्ची मुच्ची बिल्ले, कुत्तियां, कुत्ते, अज जानवर ताड़े सन, मुर्गे मुर्गियां ताड़े सन। अज उस निक्के जय अन दिसदे होए उस जीव ने, सचमुच करोने ने दिसदे होया नू पिंजरे विच बंद करके रख दिता। महाराज कहते ने, इस करके तू अरदास कर कि मालक जी कृपा करो, मेरे खर जियो सब को तेरा वस, असां जोर नाही, जे किच कर्म हम साकें, ज्यों भावै तिवें बख्श। ये मैं तकरीबन पौना घंटा अज ये लाया, मैं 15 मिनट। बाकी जिहड़ी बेनती करनी है कि साडी एक इच्छा सी, वैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਜਾਂ दुनियावी कमेटियां ने देश प्रदेश विच सारियां दी इच्छा अगले साल गुरु तेग बहादुर जी आप जी दा 400 साला आगमन गुरपुरब आ रहा है, ते तुसी कृपा करो सुख शांति वरता दिओ, तां जो सारी मानवता, तुसी तां पर्दे ढकण वाले हो, तुसी धर्म दी चादर हो, हर मुसीबत तुसी दूर करन वाले हो,
हे सच्चे पातशाह तुसी किरपा करो, पर असी जो उपराला कीता है हर एक दा सेवा करन दा आपो अपना दायरा है। कोई गुरमुख लंगर दी सेवा कर रहा है, कोई मायारी कर रहा है, कोई हत्थी कर रहा है। जे परमात्मा ने साडी ड्यूटी एक कथा विचार ते लाई है, मेरी इच्छा भी जिन्ने दिन असी घर भी बैठे खां ते आप संगत नाल मैं विचार सांझे करदा रहा, भावें मैं इकल्ला हाँ इस जगह, पर तुसी जिथे भी सुनोगे मैनू असीस बख्शो, सुरत करके एक दूजे दे सत संगी बन सकी। शरीरक तौर पर तुसी नहीं एक दूजे दे नेड़े हो सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की गल कर रही है पूरे का पूरा वर्ल्ड, पर असी सुरत करके जुड़ सकने। तुसी सुनो, सुरत करके मैनू असीस बख्शो। गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दी 54 साल की यात्रा है इस धरती की, सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दा आगमन श्री अमृतसर साहिब जी की धरती ते होया है। 1621 अप्रैल का महीना सच्चे पातशाह महाराज जी का आगमन। 6वें गुरुदेव धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह षष्टम खत जिन्हों असीं कहने कि गुर भारी शब्द वरतने, 5 प्याले 5 पीर असीं वरतने शब्द। छठम पीर बैठा गुर भारी, छठम पीर मीरी पीरी दे मालक, अकाल तख्त साहिब दे रचैते। अमृत वेला है। अज थोड़ा जिहा इतिहास कह के असीं कल तो सतगुरां दे लड़ीवार श्लोकां दी प्रारंभता करांगे। अमृत वेले दरबार साहिब कीर्तन हो रहा है। सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब कीर्तन सुन रहे, उस वक्त घरों सेवादार हुंदा है। अमृतसर साहिब जिथे दरबार साहिब है, विवेक सरक है, राम सरक है, संतोख सरक है, कौल सरक है, मैं बेनती करांगा उत्थे एक स्थान है जिन्हों गुरु का महल कहते हैं। गुरु का महल वो स्थान है जिथे गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद साहिब हजूर ने अपने परिवार का निवास उत्थे रखा। अमृत वेला है। सतगुरु दरबार साहिब आसा दी वार दा कीर्तन सुन रहे ने ते सेवक आ पहुंचदा है, आके बेनती करदा है सतगुरां नूं भोग तो बाद महाराज आप जी दे गृह विखे साहिबजादा जी दा शब्द वरता, जन्म दा जिक्र कीता। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब भाई बिधि चंद होर गुरसिख नाल घर जांदे आ। जदों महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब घर पहुंचदे आ ते सतगुरु अपने इस नव शिशु बेटे नूं, इस नव जम्मे बच्चे नूं अपने हत्थां विच लैंदे आ। साडा इतिहास कहंदा है कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब अपने बेटे नूं हत्थां च लै के गुरबिलास कहंदी है सीस थोड़ा जिहा झुकांदे आ। जे पुछदे आ महाराज ये आप जी दे बेटे तां अगे भी ने। आप सब नूं पता है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे 5 बेटे ते 1 बेटी, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी ते बेटी एक बीबी वीरो जी, ते सब तो छोटे जिन्हां दा असीं 400 साला मनाउण जा रहे हैं 9वें गुरुदेव सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने। सतगुरु अपने इस बच्चे नूं हत्थ च लैंदे, हत्थां च पकड़दे आ ते पुछदे ने बकोल बैठे भाई बिधि चंद, सच्चे पातशाह इस नव शिशु नूं इतना सन्मान अदब क्यों? महाराज जिहड़ा उत्तर दिंदा सुनने वाला है, कहंदे ये मेरा बेटा दीन रक्षक, संकट हरण ते पर्दे टक्कण वाला होवेगा। ये सच वचन है। दीन रक्षक ये गरीबां दा रखवाला है। संकट दा अर्थ मुसीबतां पैणगियां, उन्हां मुसीबतां नूं कट्टण वाला है। दीन रक्षक, संकट हरण ते सचमुच पर्दे ढकण वाले ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दी जन्म भूमि श्री अमृतसर साहिब दी धरती गुरु के महल वाला स्थान है। महाराज जी दी परवरिश अमृतसर दी धरती ते शुरू हुई। आप शुरू तो ही बैराग विच रहिंदे सन, बहुत घट बोलते सन, ज्यादा खिड़खड़ा के चंचलताई च किसी ने हसदिया नहीं देखा। पर जदों बाबा अटल राय जी का चलाना होया, गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे जीवन विच
इस घटना ने बहुत डूंगा गहरा असर पाया। समा आया गुरु हरगोबिंद साहब नाल पिता जी नाल महाराज करतारपुर की धरती ते पहुंचे। करतारपुर जंग हुई। साडी तवारी कहंदी है गुरु तेग बहादुर साहब ने उस जंग विच शमूलीयत की। इत्थे गुरुदेव जी का सन्मानयोग बाबा लाल चंद जी उन्हां दी बेटी जिन्हां असीं सन्मानयोग माता गुजरी जी कहने का उन्हां दे नाल शादी विआह होया है। आनंद कारज गुरुदेव दा करतारपुर होया। इस तो बाद पिता गुरुदेव नाल कीरतपुर साहिब दी धरती ते चले गए। कीरतपुर साहिब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुरगद्दी दा फैसला अपने पोते गुरु हरराज साहिब जी नूं देण दा कीता। जदों माता नानकी जी ने बेनती की गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे माता जी का नाम माता नानकी है कि सच्चे पातशाह मेरा ये पुत्र तो किसी नाल ज्यादा बोलता भी नहीं, निमरता च रहिंदा है, तुसी पोते नूं गद्दी दित्ती। इतिहास कहंदा महाराज जी ने शस्त्र पोथी एक रुमाल दिता नाल क्या आप जी बकाला साहिब दी धरती ते बकाले चले जाओ, समा आएगा तुहाडा पुत्र एक दिन गुरता गद्दी ते असीन होएगा। नाल क्या माता नानकी जी कहंदे तेरे घर इस दे घर जां तेरे घर जिहड़ा पोता होवेगा गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दे घर जिहड़ा बेटा होएगा उस वर्गा ना कोई सी ना कोई अगा होवेगा। महाराज गुरु तेग बहादुर बाबा बकाला साहिब दी धरती ते आ गए। इत्थे लंबेरा समा महाराज जी ने इबादत विच बंदगी विच बतीत किया। पर मैं ये बेनती करांगा ये बंदगी घरां तो भजन वाले भगौड़ियां दी नहीं सी कि महाराज भोरे च बह गए। प्यारिओ ये इबादत सी सो गिरही जो निग्रह करे जप तप संयम भीख्या करे पुण्य दान का करे शरीर सो गिरही गंगा का नीर। महाराज जी ने इत्थे बड़ी इबादत की। उंज गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन ने कि तात मात मुर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलाह की सेवा तांते पै प्रसन्न गुरदेवा। गुरु हरकृष्ण साहब दिल्ली दी धरती ते सचखंड प्याना कर गए पर शब्द कह गए बाबा बसे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले। भाई मक्खन शाह ने बाबा बकाला साहब आके सतगुरां नूं प्रगट किया। महाराज अमृतसर दी धरती ते गए मालवे दा रटन किया उन्हें। मैं बेनती करा सतगुरां ने माखोवाल दा जिन्हों अज श्री आनंदपुर साहिब कह रहे हैं इत्थे मोड़ी गढ़ सतगुरु ने चक नानकी वसाया। सतगुरु पूर्व नूं गए जिस दा जिक्र दशमेश पिता ने किया मुरपित पूर्व कीस प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ही जात तरबैणी भय पुन दान दिन करत बतय तई प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भव लियो। महाराज पूर्व गए परिवार पटने टिका दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन पटना साहिब की धरती ते होया। गुरु तेग बहादुर वापस परिवार नूं पटने मिले। उस तो बाद पंजाब की धरती ते आ गए। आनंदपुर साहिब रहमतां वरताइयां। सतगुरां ने आनंदपुर साहिब बख्शां दे भंडारे खोल दिते। इत्थे आनंदपुर साहिब की धरती ते कश्मीरी पंडित आके फरियादी होए। उन्होंने कहा साडा धर्म संकट च है। तिलक जंजू की राखी लई धर्म की राखी लई गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दे सपुत्र गुरु गोबिंद राय जी ने इन्ने पूछया पिता जी ये लोग मायूस क्यों ने। उत्तर दिता लाल जी इन्हां दा धर्म इन्हां दा अकीदा संकट विच है। पिता जी बच सकदा है? हाँ बेटा कोई महापुरख अपना आपा इस मुसीबत लई कुर्बान करदा है। ते पुत्र दा उत्तर सी पिता जी आप जी तो उच्चा आप जी तो सुच्चा आप जी तो वड्डा कौन हो सकता है। मेरे कहने तो मुराद गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली जा इस जुल्म की खनेरी नूं थम्मण दे लई 3 सिखां समेत चांदनी चौक भी शहादत का जाम पीता। गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दे जेड़े बचन ने मैं बिल्कुल संखेप जिहा शब्द वरते क्योंकि अज भी गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह दिल्ली की संगत की
जिथे भी कोई भावना वाला बैठा है, गुरु गोबिंद सिंह जी दे ना बचनां नूं याद करदा है कि तेग बहादुर सिमरिया घर नौनिध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं चेते कर लई, उन्हां दी 400 साला आ रही इस जन्म शताब्दी लई असी आप संगत दी सेवा लई जिन्नी आप गुरु वैगुरु सोझी देणगे, आप संगत असीस बख्शोगे। महाराज जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच 59 शब्द ने ते 57 शलोक ने। चलो इस विच असी दोहरा भी लै लेने, बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना होत उपाय। असी यतन कीता है कि जेड़े शलोक गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म आकारत कीन, ये जेड़े 57 शलोक ने विच दोहरा पा के ये आप संगत दी सेवा दे विच इन्हां दी लड़ीवार व्याख्या आप संगत दे सानू रख सकी, क्योंकि बाणी साडा आधार है। मैं यतन करांगा आने वाले दिनों च परमात्मा तंदुरुस्ती दे, आरोग्यता सब नू बख्शे। इन्हां शलोकां दे नाल हजूर दे जीवन दी भी कोई ना कोई घटना आप संगत नाल जरूर सांझी करदा रहांगा। पर आओ आपां घरां च बैठे हां, गुरु तेग बहादुर साहब दे इन्हां शलोकां नू ज्यों-ज्यों विचार चलेगी, आप जरूर इस विचार नू ध्यान दे के सुनना, असीस बख्शनी। क्योंकि मैं समझाना नहीं कुछ, तुहाडे तो समझना भी है आप संगत तो। दूजी गल, जे आपां 2-2 शलोक जिन्ना समा बनेगा 2, 3, 1 जे रोज रोज 24 घंटे साडे कोल टाइम है ते जे आपां 2-2 शलोक ही रोज चेते कर लईए, एक घर बैठिया गुरु तेग बहादुर साहब दे 57 शलोकां दा पाठ जबानी कंठ हो जाएगा।